Good afternoon all, and welcome to this session on changing face of media. The theme of today's discussion couldn't have been more relevant. I think the changing face of media is more relevant today than ever before, as we know that the information today is traveling at ever faster rate. And the truth about the information, the credibility of that information, and integrity of that information, it is struggling to keep pace with the truth. So here is the dichotomy: speed versus accuracy, speed versus content. It is in this changing media landscape that we have seen that during last few years, digital media platforms, social media have completely reshaped and redefined how we conceive the information news in the first place, how it is conceived, how it is deciding and giving us a prism to conceive the news, how the narratives are created, how the stories are created, narrated, how they are received, how they are framed through new media formats, and how they are received and how they are impacting society. In other words, there is an intricate interplay between technology, between audience, media content, and people's trust. It is in this context that today we have with us three very eminent professionals from media background. All three of them in their own way have redefined and reshaped media content and media branding and contributed in their own way. We have with us, to begin with, Kavita Upadhyay. Let me introduce them briefly. Yes. So Kavita is sitting here. Kavita is an independent journalist and a researcher who focused on science, policy, and environmental issues in the Himalayas, particularly in Uttarakhand. With over a decade of experience, she has written for top publications including The Hindu, The Indian Express, and the journal Science. She holds an MSc in Water Science, Policy and Management from Oxford, alongside degrees in Journalism and Engineering. Welcome, Kavita. We have with us another very eminent personality, Rajat Shakti, who is the head of the Red FM 93.5 in Uttarakhand, leading operations and content. Formerly, Rajat was the state head for the Times of India's newspaper and education program. With a corporate background in media and education, she focuses on impactful creative content and community engagement in the entertainment industry. Welcome, Rajat. And we have with us Rahul Kotial, who is the founder editor of Baramasa and an award-winning journalist with over a decade of reporting across India, from Bastar's red corridors to Kashmir and Delhi's unrest. He has received the most prestigious honors, including the Ramnath Goenka Award, Red Ink Award, and Umesh Dobhal Patrikarta Samman. Welcome, Rahul. So it is in this backdrop that I think राहुल से शुरुआत हमको करनी चाहिए. हमको बाहर भी बहुत लोग मिले जो कह रहे हैं राहुल सर को सुनना है. हम लोग शायद थोड़ा ज़्यादा सीनियर हो गए जर्नलिज्म में, रेलेवेंस थोड़ी कम हो गई, इनकी ज़्यादा है. राहुल जी, जो अभी मैंने थोड़ी सी कॉन्टेक्चुअलाइज किया थीम को, आपने जब शुरू किया, यू वर्कड इन द ट्रेडिशनल मीडिया, राइट फ्रॉम प्रिंट टू ब्रॉडकास्ट मीडिया टू नाउ डिजिटल प्लेटफॉर्म. हाउ हैज़ been your journey, and how have you adapted with this change, your experiences with the changing media technology and fitting into every format? Thank you so much, sir. उस सवाल के लिए कि कितना कुछ बदला है, उसको ऐसे समझ सकते. मैंने जब शुरू किया था जर्नलिज्म अपना, तो नैरेटिव फॉर्म एक मैगजीन इंडिया की काफ़ी पॉपुलर मैगजीन थी, तहलका मैगजीन, वहाँ से मैंने मेरी जर्नी शुरू हुई और लॉन्ग फॉर्म रिपोर्टिंग के लिए तहलका जाना जाता था. तो उस दौर में पत्रकारिता को करना भी और उसको परसीव करना भी, दोनों के जो तरीके थे वो डिफरेंट थे. मुझे आज भी याद है, पहला जो रिस्पांस मुझे छातापुर नाम की बिहार में एक जगह है, वहाँ से किसी ने पोस्ट कार्ड लिख के अपना रिव्यू भेजा था, जिसको मेरा कोई स्टोरी उसको पसंद आई होगी. तो वो रिव्यू जिसने भेजा उसमें कितनी मेहनत लगती थी. कोई व्यक्ति अगर आपको प्रतिक्रिया देना चाहता है तो बाकायदा पहले पोस्ट ऑफिस से एक पोस्ट कार्ड लेगा, उसे लिखेगा, पोस्ट ऑफिस जाके पोस्ट करेगा, वो 4 दिन बाद आप तक आएगा,
तो उस प्रतिक्रिया की भी बहुत महत्व होता था। प्रतिक्रियाओं का महत्व तो लगभग खत्म सा हो गया है, क्योंकि अब तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे वापस प्रतिक्रिया देना उतना ही आसान हो गया है, और उसने बहुत ज़्यादा शेप करना भी शुरू किया है, क्योंकि प्रतिक्रियाओं को करवाने के लिए भी बाकायदा एक IT सेल बैठा है जो ये तय करता है कि प्रतिक्रियाएं कैसी हों, और उस प्रतिक्रिया से ये तय किया जाए कि जिस फॉर्मेट में जर्नलिज्म चल रहा है उसको शेप करवाने के लिए प्रतिक्रियाओं का एक अलग से मॉडल बैठा दिया गया है। उसी सवाल पे आते हुए कि कितना कुछ बदला है, फॉर्मेट के साथ साथ, फॉर्मेट के चेंज होने के साथ साथ न्यूज़ के पैटर्न्स भी बदलते चले गए। पहले जब हम लोग मैगजीन में काम करते थे, एक एक स्टोरी पे 15-15 दिन का टाइम मिलता था, कई बार 30-30 दिन का टाइम मिलता था, उतनी मेहनत के साथ में, और फिर एक स्टोरी बाहर आती थी और उस स्टोरी में वो रिफ्लेक्ट भी होता था। अब कोई भी प्रोडक्शन हाउस, मीडिया हाउस, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि अपने एक एक जर्नलिस्ट को 15-15 दिन का समय दे दे कि वो 15 दिन तक एक स्टोरी पे काम करे और फिर उसे करे, क्योंकि अब डिजिटल एज में एक दिन में एक एक जर्नलिस्ट के पास 15-15 स्टोरीज हैं एक दिन में, तो वो कितनी मेहनत 15 स्टोरीज पर कर पाएगा। ये तो बदला है न्यूज़ रूम्स के अंदर, और पाठकों के लिहाज से भी, क्योंकि टेक्स्ट का कंटेंट लगातार कम हो रहा है। मतलब किताबों से, अभी बाहर भी हमारी इस बारे में चर्चा हो रही थी कि किताबों का चलन तो नहीं बदला है, किताबें आज भी पढ़ी जा रही हैं, क्योंकि किताब पढ़ने वाला एक पाठक वर्ग जो था वो किताब की वजह से ही किताब को पढ़ता था। लेकिन खबरों के मामले में ये नहीं था। खबरों के मामले में कोई सिर्फ इसलिए खबर नहीं पढ़ता था कि उसे पढ़ के ही खबर को जानना है, वो सुन के भी जानता था, वो देख के भी जानता था। तो इसलिए ये चलन बहुत तेज़ी से बढ़ा है कि कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म जिनमें मैंने भी काम किया है, दिल्ली बेस्ड ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, जो टेक्स्ट में, मतलब कर तो ऑनलाइन रहे थे, डिजिटल कर रहे थे, लेकिन डिजिटल में टेक्स्ट जो चल रहा था वो लगातार कम हो गया। कई वेबसाइट्स ने तो टेक्स्ट बिल्कुल ही बंद कर दिया, शिफ्ट हो गए हैं AV पे, यानी कि ऑडियो विजुअल फॉर्मेट पे, जिसको हम आप देखते हैं। तो कुछ चीज़ों को उसने लिमिट किया है, कुछ फॉर्मेट्स को उसने बदल दिया है, लेकिन कुछ नए फॉर्मेट्स भी आए हैं जिसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हैं। मतलब कविता के पास भी अपने एक्सपीरियंसेस होंगे। किताबों के भी आजकल AI से लोग समरी, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, बच्चे किताबों की समरी निकाल देते हैं AI से, ChatGPT से। कविता, थोड़ा सा जो बदलता परिदृश्य है, इसमें हाउ इज क्रेडिबिलिटी, एथिकल अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोफेशनलिज्म बीइंग इम्पैक्टेड और चेंजिंग? Thank you, Harji or Rahul, Harji for your kind introduction and Rahul for sharing your experiences. मैं लगती हूँ ना, because I'm heavy, I look older, पर हम सेम ही उम्र के हैं। I actually was studying engineering. I finished it and then I studied journalism. तो ऐसा लगता था कि कुछ कर रहे हैं ज़िंदगी में, you know, like doing something, felt like it's a different profession. So I started in 2013. I was heading Uttarakhand for the Hindu newspaper. So between 2013 and 2019, I headed Uttarakhand, Rajasthan and Himachal, first for the Hindu, then for the Indian Express. तो जब शुरुआत करी तो my editor was Siddharth Vardarajan at that time. अब जो वायर के एडिटर हैं, जिनको राहुल से ज़्यादा गालियाँ पड़ती हैं। So उस वक्त इतना फ्रीडम था कि आपको जहाँ जाना है, आपको बस लिखना है कि मुझे यहाँ जाके स्टोरी करनी है। फाइनेंशियल कंसिडरेशंस कुछ मैटर नहीं करती थी कि कितना पैसा लगेगा ट्रैवल में, रहने का कितना लगेगा। एक बजट था, आप उसको एक्सीड नहीं कर सकते, पर यू वर अलाउड to go and explore and do stories. I started my journalism with Kedarnath disaster in 2013 and I had absolute freedom. मैं हर 3 महीने में जाती थी उन इलाकों में for 4 years, looking at the changing things in those areas. उसके बाद then I went to Indian Express. The government had changed at the center. Journalism भी बदल गया था. Traditional media के बाद आपका online platforms काफ़ी आ गए थे in 2-3 years after I started. तो फिर मुझे याद है कि पुलवामा अटैक हुआ 2019 फरवरी। तब मैं हिमाचल और उत्तराखंड दोनों हेड करती थी फॉर इंडियन एक्सप्रेस। आई वॉज टोल्ड टू ट्रैवल क्विकली टू देहरादून। वाई? क्योंकि यहाँ पर कश्मीरी बच्चों को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। तो मैं आई और मैंने स्टोरीज़ करना शुरू करा।
उस वक्त मुझे पता चला कि कितना बदल गया है माहौल, क्योंकि मेरा जर्नलिज्म नहीं बदला था। मैं वही कर रही थी जो शुरुआत फर्स्ट डे से लेकर कर रही थी, लेकिन उस वक्त मैंने देखा कि अखबारों में वो नदारत थी खबर, वो थी ही नहीं। मतलब बच्चों को पीटा गया, 3,000 से ज़्यादा कश्मीरी बच्चे देहरादून की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे थे, उनको पीटा जा रहा था। नेशनल मीडिया में वो खबर थी ही नहीं। इंडियन एक्सप्रेस में आई वॉज द ओनली जर्नलिस्ट हु वाज कवरिंग इट फॉर नेशनल मीडिया। लोकल में सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया के लोकल एडिशन में वो आ रहा था। देयर वाज जस्ट वन जर्नलिस्ट हु वाज कवरिंग दैट फॉर टाइम्स ऑफ इंडिया। नो अदर न्यूज़पेपर, इंग्लिश, हिंदी, रीजनल वाज टचिंग दैट टॉपिक। तो मैंने पूछा कि ये क्यों है, कि ये इतनी बड़ी खबर है और नहीं हो रही है कवर। तो मुझे बताया गया कि हमें ऊपर से आ गया है ऑर्डर हमारे बॉसेस का कि छूना भी नहीं है इसको, ना अच्छा लिखना है ना बुरा लिखना है। तो उसमें साइलेंस था। तो दिल्ली में न्यूज़ चैनल्स में जो भी डिबेट्स होती थी उस वक्त, सब कुछ दैट वाज बेस्ड ऑन व्हाट आई हैड प्रिंटेड इन इंडियन एक्सप्रेस एट दैट पॉइंट। इतना प्रेशर था। आई वाज गेटिंग कॉल्स फ्रॉम द राइट विंग कंसिस्टेंटली, उत्तराखंड पुलिस ऑफिशियल्स, उत्तराखंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। मेरे साथ के पत्रकार मुझे फ़ोन करके बोलते थे कि आप क्यों कर रही हैं ये, वाई आर यू डूइंग दिस, एंड दे यूज्ड टू राइट अगेंस्ट मी फॉर डूइंग माई जॉब। तो मुझे ऐसा लगा कि शुरुआत में मैं जर्नलिज्म करती थी तो जर्नलिज्म लगता था कि हाँ इट्स अ जॉब, लाइक एवरीबडी डज देयर जॉब, आई एम डूइंग माइन। बाय 2019 इट स्टार्टेड फीलिंग लाइक कि कुछ करेजियस एक्ट कर रहे हैं लग रहा है। यू नो, यू हैव टू रियली पुट योरसेल्फ आउट देयर in order to do a job that is just another job. मतलब जैसे राहुल, मुझे आपके लिए भी लगता है कि you are doing your job. It has become such a thing कि हमको ऐसा लगता है कि अपनी हमें courage, ethics, हर वक्त you know we are at that कि हम गलती भी नहीं कर सकते. There is no scope for it anymore because people have become either haters or fans. So you can't disappoint the fans. Haters will always hate. सो आपकी वो फ्रीडम, एक जर्नलिस्टिक फ्रीडम तो चली ही गई ना किसी भी तरीके से, बिकॉज यू आर केटरिंग टू अ सर्टन ऑडियंस नाउ. सो दैट इज समथिंग दैट आई हैव सीन आई चेंज ड्यूरिंग ऑल दीज ईयर्स. More recently I do independent work, so I'll just share one recent anecdote. अगस्त में धराली में डिज़ास्टर आया. I didn't get funding. I tried many organizations. मैं independently काम करती हूँ अब, तो because I don't work with an organization, I have to try for funding कि कोई मुझे travel वगैरह के लिए allow करे तो मैं cover कर सकती हूँ. I tried a number of organizations. Nobody was ready to send me. Why? Because I work in writing. अगर आपको उतने views नहीं मिल रहे हैं तो कोई आपको fund करने के लिए तैयार नहीं है, जो पहले की स्थिति नहीं थी बिल्कुल भी. So I didn't get to go there, but still I tried to do whatever I could. Even if I could not travel there. तो मैंने एक स्टोरी करी एक प्लेटफॉर्म के लिए, and I was writing something critical in that कि भाई वहाँ पे 10,000 पेड़ हैं धराली के रीजन में, देवदार के, जो कटने वाले हैं क्योंकि उनको रोड को चौड़ा करना है, गंगोत्री हाईवे को. तो उस पर आई जस्ट वॉन्टेड टू लाइक एक्सपैंड ऑन दैट एंड राइट अबाउट इट कि अगर ये पेड़ कटेंगे तो वहाँ पे और डिजास्टर्स आएंगे एंड ऑल. आई हैड टू फाइट विद दैट ऑर्गेनाइजेशन टू कीप दैट पार्ट to a point where I said if you can't keep it then I don't want to publish with you. तो challenges बहुत हैं, like we are really putting ourselves out there, I feel, if we are continuing with the profession. So that's my side. Thanks, Kavita. That was an honest confession. Rajat, you are from slightly branding side, how to brand the credibility of a media organization. How do you reflect upon what has been discussed before you? So thank you. Am I audible? Yeah. All right. So thank you, Harji आपका और Kavita and Rahul आपका to set the stage. Oh, it's working. Is it working now? नहीं? All right. Am I audible now? Thank you, Harji and Kavita and Rahul for setting the stage up for this conversation. The most important feature that I do agree with both of them is since they are the workers behind what you read in news, and we are the people who actually put it on stage to be seen, to be heard, to be more credible, and as they say, they are from independent media, and that's where the challenges lie. And I come from a corporate background right now. They were in corporate earlier, both of them. I'm still with them. So we do know our limitations, where and how it works, and what all
in what line we have to keep in. And that is also an important part. As you said, you needed funding for your travel and everything. Earlier, democracy was also journalism. Media was also a part of democracy. Now that also comes hand in gloves with all the people who are running the show. So yes, there are challenges and there will be voices which need to be heard and seen. There are pictures which goes missing. And that's wherein our part of the job also is very important, wherein the brand credibility, the people who are actually making the real difference, and that credibility is very much in question now, since there are so many other platforms. There are so many free journalists, as we say, citizens journalists are also there amongst us. When we say there are people who are trying to make a voice for the right causes, there are also people who are just making use of these independent platforms and creating just going sensational. It's more about becoming a sensation overnight. So that is wherein the credibility of mainstream media comes in play. And as I've been with print media, as you rightly said. I worked with Times of India, NIE, and that was wherein we were only promoting positive news among the young adults. And that is where also I realized there was a shift. There's a shift in reading newspapers. Earlier, it was said when we were kids, if you remember, हम लोग जब बच्चे थे तो कहा जाता था जिस घर में न्यूज़पेपर नहीं आता है वो घर ऐसा है जिसमें दरवाजे और खिड़कियां नहीं हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास टीवी के इतने ऑप्शंस हर घर में नहीं थे. हमने वो ज़माना देखा है जहाँ टीवी कुछ घरों में था, फिर वो ज़माना देखा जहाँ टीवी में कई सारे चैनल्स आने शुरू हुए. न्यूज़ का सिर्फ एक ही ज़रिया हुआ करता था, तब DD मेट्रो एंड DD चैनल. दैट वाज वन, दीज वर टू चैनल्स जिन पे न्यूज़ सुनी जाती थी, देखी जाती थी और न्यूज़पेपर पे न्यूज़ पढ़ी जाती थी. इसके अलावा देयर वाज नो सोर्स ऑफ अदर इंफॉर्मेशन व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. Now coming to you, what you said that कि 15 दिन लगते थे पहले एक न्यूज़ को ड्राफ्ट करने में, आजकल हर एक जर्नलिस्ट के पास. I have journalist friends. The one that you were talking about, the one who wrote about that particular article in what happened to the Kashmir students. So that journalist happens to be my friend, and I was with Times of India then. So I know what struggle even they go through when they have to put the real stories on the page. So then again, coming back to where my role is in media, I do understand that when we face such challenges, we also need a sustainability model, sustenance for the people who are employed with the brand and all, and that comes from various media, various people who are, being our sponsors or the advertisers, and that's where the answerability and these all things comes. A little, there are gray areas. There are a lot of gray areas. And now I am with radio. Radio being, I'll just take one moment. Radio is now more of an entertainment media. It is not mainstream media in terms of saying news. We are not allowed to cover news unless there is a calamity. So in terms of whenever a calamity or a catastrophe happens, radio happens to be the first mode of communication that is relayed from the government side, whatever relief is happening. So that depends on those kind of situations, which is going to change very soon, because there are parties at play who are playing at that radio should be given its due importance, and we should be allowed to cover news like the other media houses. Yes. No, private radio, only आपका All India Radio is supposed to cover the news. Apart from that, community radio and private radios, they are not, so far they are not allowed to cover news. I think there is a case in Supreme Court on this issue कि जब टेलीविजन प्राइवेट न्यूज़ प्रोडक्शन कर सकते हैं तो रेडियो क्यों नहीं. रेडियो में न्यूज़ ऑल इंडिया रेडियो की आती है. थैंक यू रजत. राहुल, इन्होंने एडवर्टाइजिंग और स्पॉन्सरशिप की बात की. आई टेक इट फ्रॉम देयर. पिछले कुछ सालों से, अभी तो टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, लेकिन जो कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है मीडिया का, जिसमें मीडिया का जो प्राइम रोल था टू बेसिकली बी अ फोरम टू रेज पब्लिक वॉइसेस, पब्लिक इंटरेस्ट स्टोरीज, has taken a back seat. And in the wake of this corporatization and media for profit phenomenon, media is merely reflecting the interest of the rich and the elite. तो जो कंटेंट है मेन, जो पब्लिक इंटरेस्ट कंटेंट है, that does not attract eyeballs. पेज 3 स्टार द टाइम्स ऑफ इंडिया, बाय द वे पेड न्यूज़ टाइम्स ऑफ इंडिया ने पेज 3 शुरू किया था और वो फिनोमिना बढ़ता चला गया तब से. दिस प्रिंट मीडिया इज ऑल्सो रिफ्लेक्ट इन टेलीविजन. ये सारे उसमें एक और बात हुई है. मैं टिहरी से आता हूँ, तो टिहरी में एक छोटा न्यूज़पेपर आता था, हिमालय और हम.
और उस न्यूज़ हम बच्चे उसको पढ़ते थे, उसमें लोकल खुशबू थी, लोकल डिज़ाइन था, एक डाइवर्सिटी होती थी लैंग्वेज की, स्टाइल की, भाषा की। ख़त्म हो गए सारे छोटे छोटे पेपर्स, तो दर्पण पता नहीं है कि नहीं है। और जो बड़े नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, दोज हु कैन सर्वाइव अंडर दिस कॉर्पोरेटाइजेशन हैव कम आउट विद लोकल इश्यूज़। मतलब देहरादून पेज, ऋषिकेश पेज, चंबा पेज, टिहरी पेज, ये पेजेस आ गए हैं, तो डाइवर्सिटी कम हो गई है। आपने एक चैनल खोला, आप थोड़ा डाइवर्सिटी ला रहे हैं, कुछ नए शब्द दे रहे हैं, चकड़ैत, बबराहट, मवासी घाम टाइप का। Is it for that, or that is on a lighter note? So how do you look at it? Because you have traveled from that kind of mainstream media, तहलका से शुरू करके, तहलका was also a different newspaper of its time, to now a very small digital platform. इसको आप कैसे देखते हैं? और ये जो पूरा फाइनेंशियल मॉडल के डायनेमिक्स हैं, हाउ डू यू सर्वाइव, सस्टेन, and maintain credibility and also journalistic diversity? मतलब वन मैन शो भी नहीं होना चाहिए ना कि सब ने डिजिटल एक आदमी के सब ने चैनल खोल दें एक आदमी के। and journalism has become anchor driven, anchor oriented, one man show where the journalist on the ground, the reporter on the ground has become a casualty. How do you look at this phenomenon, because you have traveled across the landscape? फाइनेंशियल मॉडल जो है ये शायद कोर है, इसको सब लोगों को समझना जरूरी है। पत्रकारिता की, जर्नलिज्म की सबसे बुरी स्थिति क्यों है? क्योंकि वो जिस मॉडल पे बड़े मीडिया हाउसेस चल रहे हैं वो अपने आप में एक फेलियर है। उस मॉडल पे कोई भी बड़े हाउसेस आप देखिए, अखबार को ही देखिए, एक अखबार जो हम 7-8 रुपए का खरीदते हैं उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट ही 24-25 रुपए है। मतलब इतने पैसे के नुकसान पे हर एक अखबार बिकता है। तो वो पैसा कहाँ से रिकवर हो रहा है? वो पैसा रिकवर होता है विज्ञापनों से। और विज्ञापन कहाँ से आते हैं? विज्ञापन देने वाले सबसे बड़ी संस्था कौन है? वो सरकार है। वो चाहे भारत राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। केंद्र सरकार उस विज्ञापन के पैसे के एवज में न्यूज़ को, न्यूज़ नैरेटिव्स को, फ्रंट पेज को, हेडलाइंस को, हर एक चीज़ को गवर्न करती है, अपने हिसाब से ट्यून करती है। जिसकी थोड़ा क्रिटिकल होंगी उसके विज्ञापन तुरंत गिरा दिए जाएंगे, और जिसके विज्ञापन बढ़ेंगे वो आप देख ही रहे हैं कि किसी भी फैसले प्रधानमंत्री जी कुछ भी करते हैं तो वो किसी चैनल पे वो हमेशा मास्टर स्ट्रोक रहता है, या राज्य सरकार में मुख्यमंत्री कुछ करते हैं तो वो हमेशा मास्टर स्ट्रोक ही होता है, वो चाहे जो भी हो। अभी रिसेंटली हमने कुछ इंसिडेंट्स देखे, यहाँ पे पेपर लीक की एक घटना हुई, उसके बारे में हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बयान दिया कि सीबीआई जांच नहीं होगी, जो लोग ये आंदोलन कर रहे हैं तो नक्सल हैं और ये तो एंटी नेशनल हैं। और वो मास्टर स्ट्रोक था, मतलब कि धामी जी ने सबक सिखा दिया, बहुत अच्छा, ये हेडलाइन थी। अगले दिन धामी जी उन्हीं नक्सल, सो कॉल्ड नक्सल से मिलने चले गए और सीबीआई जांच की घोषणा कर दी। वो अगले दिन फिर से मास्टर स्ट्रोक हो गया कि धामी जी ने देखिए कितना बढ़िया कदम ले लिया है। तो ये इसको समझने की जरूरत है क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में जो पत्रकार काम कर रहे हैं वो पत्रकारिता करना नहीं चाहते, लेकिन वो मजबूर हैं बेचारे, क्योंकि जो लोग जॉब्स कर रहे हैं, पहले जब हम लोग तहलका में काम करते थे, तहलका भी उसी मॉडल पे चलता था, विज्ञापनों पे ही चलता था। लेकिन मैं आप पर्सनली बता सकता हूँ कि मेरे को कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई स्टोरी आइडिया पिच किया हो, उसमें कोई भी रहा। उस समय पे जब मैंने ज्वाइन किया था कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी और रेलवे स्कैम बहुत बड़ा हुआ था, पवन बंसल रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे। उनकी सीबीआई की 4000 पेजों की चार्जशीट को लेकर के हम लोग 20 दिन तक बैठे रहे। उसके बाद वो कवर स्टोरी की पब्लिश हुई। लेकिन लॉकडाउन के टाइम पे मैं एक मीडिया, और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा अब उसका, लेकिन भारत का एक बड़ा मीडिया हाउस है, उसके साथ मैं काम कर रहा था। और मैंने एक और स्टोरी की उत्तराखंड से, जो अभी देश के होम मिनिस्टर हैं। एक कोविड लॉकडाउन जैसे ही लगा तो गुजरात के कुछ लोग उत्तराखंड में फंसे हुए थे। तुरंत 2 लग्जरी गाड़ियाँ अरेंज की गई और उन लोगों को यहाँ से गुजरात छोड़ा गया। लेकिन गुजरात में जो उत्तराखंड के लोग फंसे हुए थे वो खाली गाड़ियाँ वापस आ रही थी, तो वो उसमें वापस आ रहे थे, उन्हें आधे रास्ते में छोड़ दिया गया। वो उत्तराखंड के लोगों को आधे रास्ते में उतार दिया गया। द स्टोरी आई कवर्ड, ये स्टोरी ऐसे के ऐसे लगी विद होम मिनिस्टर्स नेम। थोड़ी देर बाद मेरे एडिटर का मुझे फोन आया, राहुल कैन वी प्लीज रिमूव द होम मिनिस्टर्स नेम फ्रॉम द टाइटल। ये मेरे को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि इस तरह का प्रेशर, सीधे कॉल गया होगा मीडिया मालिक के पास में, मीडिया मालिक से संपादक के पास में, संपादक के पास से मेरे पास में। उसके थोड़े टाइम बाद मैंने वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया था। लेकिन इस तरह के प्रेशर्स जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सर, हम अभी आपने भी जिक्र किया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हर कोई अपना चैनल खोल रहा है। मीडिया के कई साथियों से मैं बात कर रहा, जो यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करते हैं, उनको रिपोर्टर्स नहीं मिल रहे हैं पहाड़ में या कहीं पे भी, अपने लिए अच्छे रिपोर्टर्स काम करने के लिए नहीं मिल रहे हैं।
क्योंकि उनकी एक तो क्रेडिबिलिटी इतनी ज़्यादा गिर गई है, फिर जिस तरह के काम करवाने के लिए उनको पुश किया जाता है, नोबडी इज़ रेडी टू वर्क देयर। उसके बजाय किसी को भी ये ठीक लगता है कि अपना एक इंडिपेंडेंट, चाहे छोटा ही हो, लेकिन अपना एक इंडिपेंडेंट एक आउटलेट खोल दिया जाए, एक प्लेटफॉर्म खोल दिया जाए। अब उसमें चुनौती ये है, इंटरवीन कर रहा हूँ जी, ये जो आउटलेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात हो रही, इसमें हो ये रहा है कि पत्रकारिता कहाँ है? फैक्ट डेटा इकट्ठा करके इंटरप्रिटेशन थोड़ा उसको स्लैंट दे देता, रेंटिंग कर ली। वेयर इज द रिपोर्टर ऑन द ग्राउंड इन दिस, जो जिसकी आप बात कर रहे हैं कि तमाम लोगों ने खोल दिए, तो ये भी तो पूरा रीशेप ही कर दिया है जर्नलिज्म को। वेयर इज द रिपोर्टिंग ऑन द ग्राउंड? उसके एक रीज़न और भी है सर। उसका एक बड़ा रीज़न तो ये है कि पहले जर्नलिस्ट को जितनी मेहनत फैक्ट कलेक्शन पे करनी पड़ती थी, टेक्नोलॉजी के, सोशल मीडिया के बढ़ने से वो आसान हो गया है, क्योंकि तुरंत इनपुट। जैसे धराली में कुछ हुआ, धराली में हम लोग 4 दिन बाद पहुंचे होंगे, लेकिन धराली के वीडियोस पूरा दुनिया देख चुकी थी। तो एटलीस्ट प्राइमरी इंफॉर्मेशंस जो हैं वो ग्राउंड से बहुत जल्दी आ जाती हैं। तो इसलिए भी वो रोल बदल गया है कि प्लेटफॉर्म्स पे जो लोग अपने अपने कोई भी प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उन प्रोग्राम्स को सही कंटेक्स्ट में फैक्ट्स को रखना। अब तो फैक्ट्स का बम्बार्डमेंट होने लगा है ना, मतलब अब पहले ये होता था कि कोई क्या लिख रहा है उस पर बात हो सकती थी, अब ये चेंज हो गया है कि एक फैक्ट अगर किसी ने दिया तो उसको झुटलाया डायरेक्टली नहीं जाता, उसके अगेंस्ट 4 काउंटर फैक्ट्स खड़े कर दिए जाते हैं, वो चाहे फेक अकाउंट से हो, चाहे रियल अकाउंट से हो, चाहे आईटी सेल्स के जरिए हो। तो उनको चैलेंज करना एक बड़ा चैलेंज बन, मतलब उनको टैकल करना कि आउट ऑफ सो मच इन्फॉर्मेशन आप कैसे इन्फॉर्मेशन को लेके और सही कंटेक्स्ट में रखते हैं। लेकिन इसका चैलेंज अब ये है कि जब फॉर एग्जांपल मैंने 12 मासा 3.5 साल पहले शुरू किया, या कोई भी और अन्य ऑर्गेनाइजेशन जो नया शुरू होता है, तो जब वो नया होता है उससे किसी को बहुत ज़्यादा, उसकी रीच बहुत लिमिटेड होती है, उसकी पहुंच बहुत सीमित होती है, बहुत सीमित लोग उसको देख पाते हैं। उसके बनिस्बत जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, उनका अपना एक से है, उनका अपना एक काम करने का तरीका है, उनको कंट्रोल करना आसान है, उनको कंट्रोल कर लिया जाता है। और ये जो छोटे छोटे हैं, इनको तब तक कंट्रोल करने की कोशिश नहीं होती जब तक ये ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, 4 लोग ही तो देख रहे हैं, 400 लोग ही तो देख रहे हैं। जब वो 400 बढ़ के 4 लाख की व्यूअरशिप तक पहुंचता है, तब उसके लिए प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तब लोग ये टैग देखना शुरू कर देते हैं कि यार ये जो बात कर रहे हैं उसे तो बहुत ज़्यादा लोग सुन रहे हैं, और ये अब नैरेटिव को फॉर्म करने की जगह पे पहुंचने लगे हैं। तो उसको कंट्रोल करने के जो तरीके हैं, वो हर तरह के हथकंडे सरकारें जो हैं अक्रॉस इंडिया, वो सरकारें जो हैं अपनाने लगती हैं। तो फिर भी कविता टेकिंग फ्रॉम देयर, उत्तराखंड ज़्यादातर ना इट रिमेन्स अंडर रिप्रेजेंटेटेड इन द मेन स्ट्रीम मीडिया एंड द नेशनल कन्वर्सेशन डिस्पाइट दिस, अनलेस देयर इज धराली का जब तक कोई ट्रेजेडी ना हो या कोई बहुत सेंसेशनल वो ना हो। तो जबकि इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, आपने क्योंकि हिमालयन इकोलॉजी डेवलपमेंट पे बात की है, और हमारे द नैरेटिव्स फ्रॉम हिमालयाज एंड उत्तराखंड आर वेरी इन द क्वाइट बट वेरी पावरफुल, बीट culture, ecology, day-to-day lives experiences. How to ensure adequate representation in the so-called mainstream media today, if at all? या यही आंसर है, जैसे राहुल जी ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया है तो वो अपने लोकल इश्यूज उठाते हैं। मैं इसका तो जवाब नहीं दूंगी कि आपको कि हाउ टू इंश्योर रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज अखबार उतने ही पन्नों का आता है जितने का वो आता है। उसमें सेक्शंस डिवाइडेड हैं कि नेशनल को इतना स्पेस मिलेगा, इंटरनेशनल को इतना स्पेस मिलेगा, ओपिनियंस के लिए स्पेस तय है। तो आपकी जगह उन्होंने तय कर लिया, आप छोटे राज्य हैं, आपकी अहमियत सेंटर में नहीं है, पार्लियामेंट्री सीट्स बता देती हैं आपको, है ना। लेकिन एक अच्छा चीज़ क्या हुआ है, जो ये नया एक जर्नलिज्म में जो एवेन्यूज़ खुले हैं जहाँ ट्रेडिशनल मीडिया ने एक बैक सीट ले ली है। लोग जनरली अब ट्रेडिशनल मीडिया को नहीं अप्रोच करते हैं एज द फर्स्ट मीडियम फॉर न्यूज़, क्योंकि इतने सारे नए प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं। सो a good thing that has happened, which I think is that there is a space for local regional channels if somebody wants to take it up. There is a space, let's say, for a Baramasa which wasn't there earlier. पहले आपके पास ऐसा कोई तरीका ही नहीं था कि अपनी आप बात कह भी सकें। अब हम यहाँ बैठ के तो तय नहीं कर सकते हैं कि कौन कहे कौन ना कहे, पर अगर आप कहना चाहें तो आपके पास आज के दिन में एवेन्यू है। इनफैक्ट राइट नाउ आई एम हेडिंग दिस, एक छोटा प्रोजेक्ट है गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव का, उसका नाम है AI स्किल्स अकेडमी। तो गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव दे ट्रेन जर्नलिस्ट्स ऑन टेक्नोलॉजी। सो माई प्रोजेक्ट, आई एम अ प्रोग्राम मैनेजर फॉर इट। वी आर बेसिकली ट्रेनिंग जर्नलिस्ट ऑन AI
And I've realized we have a lot of small organizations who are also a part of this program and big traditional houses. And I've realized that every participant tells us that हम जितने लोगों को हायर करते थे XYZ काम करने के लिए, एडिट करने के लिए, ये करने के लिए, हम तो ये बहुत आसानी से खुद ही कर सकते हैं अब AI को यूज़ करके. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई चाहे डिजिटल एज में to use these platforms of social media and like YouTube and have their own channel and say their own thing, it's possible with lesser money than it would have cost पहले. तो वो possible तो है. अब quality जो है वो हम दूसरे की तय नहीं कर सकते कि उसका एक और नया क्राइसिस है. And either of you can respond actually what you said, rightly so partially. लेकिन एक बड़ी चैलेंज है कि जर्नलिस्ट है कौन अब. सिटीजन जर्नलिज्म की बात हो रही थी. हर चौथा आदमी तो माइक लेके खड़ा है. कोई ट्रेनिंग है, कोई बैकग्राउंड है, ब्लैकमेलिंग बहुत हो रही है. सो हाउ डू लुक एट दिस न्यू टेक्नोलॉजी ने हर आदमी को एम्पावर कर दिया, लेकिन जर्नलिज्म एज ए प्रोफेशन को वीकेंड भी कर दिया. क्योंकि कई लोग तो बैकशीट ले चुके जो ठीक ठाक उनको लगता है कि कहाँ किसी ने प्रोफेशन बदल दिया. तो ये बड़ा क्राइसिस है कि पत्रकार है कौन. हाउ डू लुक एट इट. कोई बॉडी नहीं है पत्रकारों की जैसे मॉनिटरिंग की बाकी जितने मेडिकल की होती है, जर्नलिज्म की या मीडिया की कोई इस तरह की बॉडी नहीं है जो कि सर्टिफिकेशन दे कि हाँ यू आर द राइट जर्नलिस्ट. सतीश जी हैं. सतीश जी हम बात कर रहे थे कि लोकल न्यूज़पेपर्स ख़त्म हुए बहुत सारे कॉर्पोरेटाइजेशन के दौर में. आपका गढ़वाल पोस्ट चल रहा है बहुत सालों से. हाउ डू लुक एट इट राहुल. पत्रकारों की जो बाढ़ आ गई है और हर आदमी बोलता है कि स्ट्रेट फ्रॉम द ग्राउंड जीरो वहाँ खेत में पहुँच गए, उसको कैसे मॉनिटर करें, क्या करें. सर ज़रूरत ही क्या है मॉनिटर करने की. लेट इट बी ऑडियंस डिसाइड करेगी कि उसको किसको सुनना है और किसको कितनी गंभीरता से सुनना है. और ये जो मिसलीडिंग ऑल्सो सी नहीं देखिए ऐसा है ना, मतलब जो बड़े बड़े लीड टू स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ये प्रॉब्लम है. सर मिस इन्फॉर्मेशन तो 2000 के नोट में चिप लगी है, ये कहाँ से आई. ये उस जर्नलिस्ट के थ्रू आई जो भारत का सबसे बड़ा जर्नलिस्ट था और सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर बोल रहा था. तो मिस इन्फॉर्मेशन तो वहाँ से सबसे ज़्यादा निकल के आ रही हैं जहाँ से कोई उम्मीद ही नहीं करता. उसके वनिस्पत जो बेचारा ग्राउंड से सिटीजन जर्नलिस्ट अपना मोबाइल लेके कर रहा है, वो एक्चुअली ग्राउंड की सच्ची कहानी बता रहा है, उस पर ज़्यादा लोग विश्वास कर रहे हैं. तो ये ऑडियंस और सब लोग, मतलब जो भी दर्शक है वो ये समझता है कि वो जिसे देख रहा है वो आदमी किसी प्रोपेगेंडा का शिकार है, वो आदमी किसी पर्टिकुलर पार्टी की तरफ से खेल रहा है, वो आदमी किसी पर्टिकुलर सरकार की तरफ से खेल रहा है. जनता ये समझती है. किसी के पॉलिटिकल एफिलिएशंस अलग अलग हो सकते हैं, कोई किसी से एग्रीमेंट्स डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, हर कोई जरूरी नहीं. एज स्टूडेंट ऑफ मीडिया स्टडीज मुझे नहीं लगता कि हर ऑडियंस इक्विप्ड है इंफॉर्मेशन को डिस्टिंग्विश करने में कि क्या राइट है क्या गलत है. और एक जो मैंने पहले सेंट्रलाइजेशन की बात की कि मीडिया पूरा एंकर ड्रिवन, सारे के सारे इस तरह के जर्नलिस्ट आपके बारामासा की भाषा में चकड़ा है तो देहरादून में ही है, दराली में 2-3 हैं, कम है. डिसेंट्रलाइज हो गया है बहुत सारा. सो हाउ टू इंश्योर द लोकल कवरेज. रीजनल जर्नलिज्म का क्या होगा. उत्तराखंड की जो बहुत पावरफुल क्वाइट स्टोरीज हैं उनका क्या होगा जिनकी कवरेज नहीं होती है. सर उसको मॉनिटर तो नहीं किया जा सकता, मतलब कोई तरीका नहीं है. पॉलिसी बना के किया नहीं जा सकता. सरकार अगर मॉनिटर करने की कोशिश करेगी तो वो और ख़राब ही होगा. भाई सरकार क्यों ये बताएगी कि भाई इन पैमानों पे खरे उतरने वाला व्यक्ति ही पत्रकार होगा या इन पैमानों पे खरे उतरने वाली स्टोरी ही स्टोरी होगी. तो उसको जितना मॉनिटर करने की कोशिश करेंगे. हाँ ये ज़रूर है कि मीडिया कंजम्पशन जो है वो अपने आप में बहुत बहुत ख़तरनाक है. मतलब कई लोग और ख़ास करके हमारे पेरेंट्स की उम्र के जो लोग हैं वो लोग किसी AI के थ्रू आए हुए वीडियो को और किसी एंकर के थ्रू आए हुए वीडियो को भी डिफ्रेंशिएट कई बार नहीं कर पाते हैं. जो बड़े जर्नलिस्ट हैं उन्हीं की आवाज़ में, उन्हीं के चेहरों के साथ में ऐसी न्यूज़ बनाई जा रही हैं जिनको डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है. तो इसकी दिशा में ज़रूर कुछ सोचा जाना चाहिए. और जैसा कविता ने भी बताया कि मतलब AI भी तो लगातार इम्प्रूव हो रहा है, तो वो हो सकता है कि वक्त के साथ आने वाले समय में कई सारी चीज़ें इसमें से फिल्टर आउट होती चली जाएंगी. लेकिन रेवेन्यू मॉडल पे मैं इससे पहले भी जो फाइनेंशियल पे हम बात कर रहे थे, बस थोड़ा सा उस पर और मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि रेवेन्यू मॉडल जो है वो जड़ है जर्नलिज्म के ख़राब होने की. क्योंकि अगर वो जब तक नहीं सुधरेगा और पब्लिक के सपोर्ट से खड़े होने वाले मीडिया हाउसेस जब तक खड़े नहीं होंगे, तब तक कोई ना कोई ऊपर रिमोट लेके बैठा ही होगा और तब तक वो नोटों में चिप मिलती ही रहेगी. वो ख़त्म ऐसे नहीं होने वाला है.
Would like to add quickly because we have 2 minutes. इसके लिए जस्ट टेकिंग अ नोट ऑन दैट टू, तो इस पे बहुत सारी जिम्मेदारी हमारी ऑडियंस की भी है कि व्हाट काइंड ऑफ न्यूज़ दे वांट टू रीड. वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑडियंस आल्सो डिसाइड्स कि उनको किस तरह का न्यूज़ सुनना है, किस तरह की न्यूज़ पढ़नी है और किस तरह की न्यूज़ से इम्पैक्ट होना चाहिए. कई बारी हम लोग एक न्यूज़ पढ़ते हैं और उस पर एक कवरेज आ जाती है, उसके बाद हम सब सो जाते हैं, हम उसके बाद शांत हो जाते हैं, हमारा अंदर का आक्रोश भी उस समय के साथ ख़त्म हो जाता है. तो वी एज एन ऑडियंस also, as a reader also, we must understand a lot of responsibilities lies with us. So when we talk about कि सारी का सारा blame game अगर journalism या journalist पे आता है, then there are a lot of you choosing not to read the mainstream media, which actually is impacting your day-to-day life. And we go or focus more towards the covered stories, which can actually not be of much use to us, but then they are actually used as diversion from the causes that is actually impacting us. So I have actually learned it from my own daughters. They are pretty grown up. I was surprised to know that they were actually going beyond the mainstream media and reaching out to sources which are giving you ground reality. And they were actually following the journalist who are making the news happen on the news ground, on where the actual action is taking place. Wherein you say there are people, hundreds of people like you who have actually left mainstream media and started their own platform to raise the conscious voice. Wherein you have, I'm sure they must be reaching out because you have a platform which has a million view subscribers right now, and they must be reaching out to cover those stories for you on your behalf. And I am sure there are people like, independent journalists who still want to keep intact the very policies of the print and the mainstream media. That's what I'm saying. Thank you, Rajat. I think we are coming to the end of the session. Before I invite maybe Akshat Kala hai kahin. Before I invite 1 or 2 questions, maybe do we have time for questions? I'd just like to conclude before I invite some questions, maybe 1 or 2. कई साल पहले मैंने अमर्त्य सेन की एक स्टडी पढ़ी थी जिसमें अमर्त्य सेन ने लिखा था कि 60s में इंडिया और चाइना में स्टार्वेशन डेथ्स हुई थी. चाइना में कई गुना ज़्यादा लोग मरे थे भूख से बजाय इंडिया के, जबकि फूड प्रोडक्शन पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में बराबर था. एंड अमर्त्य सेन्स कंक्लूजन वाज दैट बिकॉज इंडिया हैड अ फ्री मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया, द मीडिया कुड नेम एंड शेम द पावर्स दैट बी. दैट इज़ वाई चाइना डिड नॉट हैव फ्री मीडिया. तो चाइना में अनाज पड़ा हुआ है तो सड़ रहा है, कोई बात नहीं. सो दैट वाज द कंक्लूजन ऑफ अमर्त्य सेन. आई होप दैट द चेंजिंग फेस ऑफ मीडिया does. Yes sir, starting with me. इन्होंने पहले बोला. Quick questions please. आप comments कम करें. एक question pointedly and to the person. मेरा क्वेश्चन बस एक रेफरेंस देना चाहता हूँ. रॉब कुंजिया करके पुलित्जर प्राइज विनर जर्नलिस्ट हैं और रायन कैली दोनों ने अपनी जॉब जो है पुलित्जर प्राइज विन करने के 2 दिन के अंदर छोड़ दी थी. और आर्ग्यूमेंट ये था कि जो बीट रिपोर्टिंग है विच इज़ द आधार ऑफ जर्नलिज्म, जो कि प्रिंट मीडिया ही सपोर्ट करता है, वो चीज़ कलैप्स कर गई है बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ डिजिटल मीडिया. तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, वन इज़ द पॉलिटिकल अरेंजमेंट, द सेकेंड इज़ द एडवेंट ऑफ डिजिटल that has collapsed the entire structure of beat reporting, and that presents a structural shift risk for journalism, because अगर आपकी बीट रिपोर्टिंग नहीं होगी तो आप न्यूज़ कैसे आप निकाल पाएंगे ऊपर तक, और अभी डिजिटल मीडिया वही रीचर्न कर रहा है. तो मैं बस यही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, डू यू रिकग्नाइज दिस एज अ रिस्क ऑफ द कल्चर ऑफ बीट रिपोर्टिंग विच इज collapsing, which actually only print media supports, digital media does not support, TV media does not support? Your comments please. I don't know if you want me to answer that, but I will. So anyway, I agree with you. In fact, मैं आपको example देती हूँ कि अभी कुछ साल पहले in one of the newspapers that I've worked with, पहले हमको 8:30 बजे तक रिपोर्ट अपना फाइल करना होता था स्टोरी, कि दिन की आप पूरा कर लीजिए एंड देन बाय 8:30 यू हैव टू फाइल. अभी क्या हुआ है कि पहले आप डिजिटल चीज़ देंगे, सुबह उठते ही फर्स्ट यू हैव टू केटर टू डिजिटल टीम एंड देन आप अपना दूसरा करेंगे, एंड कॉन्स्टेंटली आपको डिजिटल में केटर करना ही है. अगर एक डेवलपिंग स्टोरी है तो हम दिन के एंड में एक कंक्लूसिव स्टोरी देते थे. अभी हम 10 डेवलपमेंट्स हैं उस चीज़ में, तो दिन में हम 10 बार देंगे डिजिटल को, राइट? अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया में काम कर रहे हैं तो जो बीट रिपोर्टर भी है, इवन अ बीट रिपोर्टर कैन नॉट डू देयर जॉब प्रॉपर्ली, क्योंकि आपको अब सिर्फ लैपटॉप के सामने बैठ के अपडेट्स देना है अपने ऑफिस को. यू हैव नो टाइम, no resources to cover your beat properly. तो ये तो बहुत बड़ा misfortune है.
Yeah, I agree with you that if there isn't any beat reporting, आप किस journalism की बात कर रहे हैं? Satish ji, you had a question. Quick. हेलो, नहीं मेरा सवाल नहीं है, मेरे दो कमेंट्स हैं, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं बोलूं। Please. पहला कि एक समय में अखबार की जो कॉस्ट है वो पाठक पे करता था, रीडर, आज वो बाजार पे कर रहा है, तो बाजार की बात लिखी जा रही है, नंबर वन। नंबर टू, हम लोग जब किसी महत्वपूर्ण पद पर होते हैं, वो जी, ये ले ली। हेलो, हम लोग जब किसी महत्वपूर्ण पद पर होते हैं, हम संपादक हों, ब्यूरो चीफ हों, या किसी भी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को हेड कर रहे हैं, तो हमें कई बार ये गलतफहमी हो जाती है कि अगर हम उत्तराखंड की बात करें, मैं देहरादून में बैठा हूँ और मैं यहाँ एक रीजनल अखबार पिछले 30 सालों से प्रकाशित कर रहा हूँ, जिसकी अपनी एक रिस्पेक्ट है समाज के अंदर। मेरे को ये गलतफहमी हो सकती है कि जो मैं लिख रहा हूँ वो फाइनल वर्ड है, लेकिन होता इसके बिल्कुल उल्टा है। मेरे अखबार को पढ़ने वाले, मेरे ओपिनियंस को पढ़ने वाले जो लोग हैं, वो कई लोग मुझसे ज़्यादा शिक्षित हैं, वो मेरे एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये आम लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जैसे आप सारे व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं पढ़ते हैं सुबह, उसी तरह आपको क्या न्यूज़ पढ़नी है, क्या न्यूज़ नहीं देखनी है, ये आप ही को डिसाइड करना है। थैंक यू। थैंक यू। लास्ट सुशील जी, क्योंकि ऊपर से वो आ गई कि समय नहीं है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, प्लीज। असल में ये इस तरह का सत्र है कि जिसके लिए समय थोड़ा ज़्यादा रखा जाना चाहिए था। बिल्कुल। एक तो राहुल जी से एक सवाल है कि जिस तरह से डिवीज़न है जो इस वक्त जर्नलिज्म में कि मेरा पत्रकार और उनका पत्रकार, जैसे आप पे भी एक ठप्पा है कि आप उनके नहीं हैं, तो ये डिवीज़न साफ साफ है। ये डिवीज़न 20 साल पहले ऐसा नहीं था। 20 साल पे भी छिपे तौर पे उनके और इनके हुआ करते थे। तो कोई ऐसा बैलेंसिंग पॉइंट है कि जहां इनके और उनके वाला ठप्पा खत्म हो जाए? एक तो सवाल है। एक छोटा सा कमेंट है, जो आप लोगों की बातचीत से ऐसा लगा कि जैसे जितनी भी दुश्वारियां और गलतियां हुई हैं ये पिछले 5-7 साल में ही हुई हैं। ऐसा नहीं है। 15 साल मेन स्ट्रीम मीडिया में रहने के नाते मैं बता सकता हूं कि सन 2000 में भी मालिकों के लिए हरिद्वार में गंगा स्नान अरेंज करना होता था और संपादक के लिए एनेक्सी में रूम बुक कराने पड़ते थे। तो ऐसा नहीं कि वो आज ही की चीज़ है, ऐसी बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो हर्ष जी ने शायद वो उसको थोड़ा सा अलग दिशा में ले गए, जो रंग बिरंगी पत्रकारिता आज हो रही है, 20 साल पहले के साप्ताहिक अखबार उठा लीजिए, इतनी ही अश्लील, इतनी ही डरावनी, इतनी ही भयानक, इतनी भया दोहन करने वाली पत्रकारिता तब भी थी। पेड न्यूज़ की बात कर रहा था। इतना डर के मत रहिए, बढ़िया दौर आने वाला है। राहुल जी, मेरे वाले उस सवाल पे कमेंट। थैंक यू सो मच। सर, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि पहले भी ऐसा ही होता रहा होगा, लेकिन हमने बात इसलिए करी क्योंकि हम इस दौर में पत्रकारिता कर रहे हैं, तो इसी दौर में जो दुश्वारियाँ हैं उस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। समय इनके और उनके पत्रकार वाला जो सवाल है वो मेरे को 3 डिमांडर आ चुके हैं, मुझे लगता है अलग से मैं बात कर लें। सबके बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपने बारे में कह सकता हूं कि मैंने जिस स्टोरी की, आधी स्टोरीज में मैं इनका हो जाता हूं और आधियों में मैं उनका हो जाता हूं। कभी ये कह दिया जाता है कि ये कांग्रेस के एजेंट हैं, कभी ये कह दिया जाता है कि ये फलाने के एजेंट हैं। तो उस ठप्पे का मुझे डर भी नहीं है। वो जो मर्जी अपने अपने अनुसार जो मर्जी लगाता रहे। मेरी पर्सनल जर्नलिस्टिक सेंस में किसी खबर की न्यूज़ वैल्यू क्या है, मैं उसको उसके आधार पे करने की कोशिश करता हूँ, बाकी सब वो जनता के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल, रजत। आई थिंक This is last. So media should always be for the people, by the people, and of the people, and that is what he means to say. Neither left nor right, but they're right there in front of you, right? Thank you, Rajat. Thank you, Rahul. Thank you, Kavita, for being very good speakers without raising any controversy, and thank you everyone for being very good, attentive audience. Thank you.